Hello friends, I'm Mr. Bhairao sir, and as usual I welcome you to my channel. So friends, today we are going to learn one of the emotional topic from 10th standard lower level English, and that is an encounter of special kind written by Tapan Mukherjee. Before going to see this topic in detail, as usual, I request you don't forget to subscribe my channel. The name of the topic is An Encounter of a Special Kind, written by Tapan Mukherjee. Let's see the first paragraph of this topic. It is about my father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. मेरे पिताजी मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े होने के कारण वेस्ट बंगाल रानीगंज यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. The offices of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. वहाँ एक बड़ा सा कैंपस था और उस कंपनी के सभी ऑफिसर्स को एक स्वयं के लिए खुद का बंगलो वहाँ रहने के लिए दिया गया था. Our house was in the corner of the campus. हमारा घर भी उस कैंपस के कॉर्नर में था. The officers club was adjacent to the balcony. The officers club was adjacent to the boundary wall of our garden. यानी कि हमारे गार्डन के बाउंड्री वॉल के नजदीक. Adjacent मीनिंग यानी बहुत पास ही ऑफिसर्स का क्लब भी था. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and host of tall and majestic trees. वहाँ का कंपाउंड बहुत ही लग्जरियस था. वहाँ ग्रीन ग्रास थे, कलरफुल फ्लावर्स थे और वहाँ के टॉल ट्रीज मानो कि होस्ट यानी वेलकम कर रहे थे और वो ट्रीज बहुत मैजेस्टिक भव्य से दिखाई दे रहे थे. The seasonal vegetables in the kitchen garden of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. लेखक के बंगलों के समीप एक छोटा सा किचन गार्डन भी है. वहाँ अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स है. वहीं बहुत बड़े मैग्निफिसेंट एंड बहुत सुंदर बहुत भव्य ऐसे ट्रीज भी है और वह सभी वहाँ के गिलहरी को कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली आकर्षित करते थे. A group of langurs had even made their den in an ashwastha trees nearby. यानी कि लेखक के घर के पास ही अश्वत्था नाम का एक ट्री है और वहीं पर कुछ लंगूरों ने अपना रहने का ठिकाना डेन यानी रहने का ठिकाना किया था. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. लेखक कहता है वहाँ के सभी पेड़ पौधे फ्लावर्स जीव लंगूर्स बर्ड्स ये सभी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए थे. A small incident on Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the whole wonders of God's creation. शनिवार के दोपहर के समय की एक घटना घटित हुई और उसका परिणाम मेरे ऊपर बहुत हुआ, ऐसा राइटर कहता है. उस घटना ने एक अनफोल्ड बिफोर माय आईज एंड मेरे सामने एक प्रकट हुआ. मुझे पता चला एक नए न्यू डायमेंशन का पता चला, नए फैक्टर का एक नई घटना का पता चला जो कि इस पृथ्वी तल पर घटित हो रही थी और ये घटना भगवान ने ही बनाई हुई एक नया आश्चर्यकारक घटना थी. It was a few days into the पूजा वैकेशन. वह समय दुर्गा पूजा का एक वैकेशन का समय चल रहा था. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. बाकी के बच्चों की तरह मुझे भी उस वैकेशन के समय मैं पूरी तरह से इंग्रॉस यानी मग्न हो चुका था उस वैकेशन में मैगजीन पढ़ने में, स्टोरी बुक्स पढ़ने में, जो कि स्पेशली चिल्ड्रन के लिए पब्लिश हो चुके थे.
After a hearty lunch, my parents and my younger sister lay down for an afternoon nap. दोपहर का हेवी लंच करने के बाद मेरे माता पिता और मेरी यंग छोटी बहन दोपहर के समय सो रहे थे, नैप आने स्मॉल स्लीप, एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, और मैं स्टोरी बुक्स पढ़ने में मग्न हो चुका था. The quiet afternoon presented a perfect backdrop for reading an adventure story. उस समय दोपहर के समय शांतता थी और वही मेरे लिए एक एडवेंचर स्टोरी पढ़ने के लिए एक परफेक्ट और एक अच्छा समय था. The silence was occasionally broken by the sound of my family's snoring. उस दोपहर की शांतता मेरे माता पिता की खराटे मारने की वजह से डिस्टर्ब होती थी. The intermittent chirping of the house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. उसी समय बीच में चिड़िया की चहचहाट, कौवे की काव काव करना और दूर से पतंग उड़ने की आवाज उस शांतता को भंग कर रही थी. Minutes ticked by, I become deeply absorbed in the book. हर एक मिनट जा रहा था, हर एक पल में बुक पढ़ने में पूरी तरह से मग्न हो चुका था. Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. अचानक मुझे सुनाई दिया कि रास्ते पे कुछ कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. उस आवाज को मैं ये समझकर नजरअंदाज कर रहा था कि किसी कॉर्नर पर वो सभी कुत्ते उस अनफॉर्चुनेट हैप्लेस यानी अनफॉर्चुनेट पिग के पीछे लगे रहे होंगे और उसे भौंक रहे होंगे. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. परंतु थोड़े ही समय में वो कुत्तों की आवाज बहुत आक्रामक तरह से आवाज सुनाई दे रही थी. उन्हीं के साथ कौवों का जोर जोर से काव काव करना ये भी सुनाई दे रहा था. I also heard the disturbance approaching closer. वो आवाज मुझे बहुत पास नजदीक आ रही थी. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. मेरी जिज्ञासा उस आवाज की वजह से मुझ पर हावी हो गई थी और मैं वरांडे की ओर चल पड़ा और वो क्या है, वो आवाज कहाँ से आ रही थी, वो वहां से मैं देखने लगा. I glanced toward the roof of the club house and saw something horrible. मैंने क्लब हाउस के छत की तरफ देखा तो मुझे एक बहुत ही भयानक दृश्य दिखाई दिया. A big langur, apparently a leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to. मैंने देखा एक नर जाति का लंगूर, ऐसा लग रहा था कि वो लंगूर के ग्रुप का वो लीडर होगा और वो एक बेबी लंगूर को बड़ी निर्दयता से काट रहा था, अपने दांतों से मानो कि वो उसे भी मारना ही चाहता था. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby watching the baby being. और उस बेबी लंगूर की माता और बाकी के सारे जो वीकर लंगूर थे इधर उधर चले गए, डर के मारे चले गए रूफ की तरफ से बिल्डिंग के, और वहां से देख रहे थे किस तरह से वो नर लंगूर उस बेबी को मार. I recalled a terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its. उसी समय बंदर या लंगूर जैसे क्लैन यानी फैमिली के रीति रिवाज बारे में मुझे याद आया. उन प्राणियों में जो मेल लंगूर होता है वो अपने से दूसरे मेल को अपने ग्रुप में लाना नहीं चाहता है. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. उसी समय मैं समय बर्बाद न करते हुए मेरे हाथ में एक स्टाउट मैंने हेवी सी स्टिक ले ली और हरल्ड
यानी कि जोर से फेंक दिया, स्टोन से पत्थर से मुझे मारने लगा उस अटैकिंग लंगूर की तरफ। Marauding means attacking. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. उस समय वो मेल लंगूर इतना infuriated यानी उस बेबी लंगूर को मारने में व्यतीत हो रहा था कि उसने मेरी तरफ ध्यान ही दिया कि मैं उसे पत्थर से मार रहा था। But then I started throwing more stones. The dogs on their part raised their pitch of cry. बाद में मैंने जोर जोर से और पत्थर मारना शुरू किया और मेरे साथ में वहां के डॉग्स, कुत्ते भी जोर जोर से भौंकने लग रहे थे। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from sloping roof over the veranda. मेरे जोर जोर से पत्थर मारने से और कुत्तों के जोर से भौंकने की वजह से वहां का माहौल पूरी तरह से बदल हो चुका था और उसी के कारण उस मेल लंगूर ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और उस अटैक की वजह से उसने वो बेबी लंगूर को छत के ऊपर से वरांडा में उसे नीचे डाल दिया। The baby was listless and appeared to be dead. और वो बेबी लंगूर पूरी तरह से लिस्टलेस यानी उसमें कुछ जान ही नहीं थी और वो मर चुका था, इस तरह से वो दिखाई दे रहा था। As its body started to slide down, the excitement of pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. और इस तरह से वो मेल लंगूर के अटैक के कारण वो बेबी लंगूर पूरी तरह से मानो कि मरने की राह पर था और उस वजह से वहाँ के पैक ऑफ डॉग्स यानी ग्रुप ऑफ डॉग्स उस बेबी लंगूर को मानो कि उसे अभी एक अच्छी तरह से खाने की तलाश में थे, उसे खाने के बारे में सोच। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक, I managed to catch hold of the baby langour's tail just as it tipped over the edge of the tile. उस मेल लंगूर ने उस बेबी लंगूर को छत के ऊपर से फेंक दिया था और उस रूफ से वो नीचे स्लाइड डाउन यानी गड़गड़ नीचे आ रहा था और मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा और दौड़ते दौड़ते जाकर उसके मैंने पूंछ को पकड़ लिया। The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. और वो बेबी लंगूर पूरी तरह से inert यानी powerless, motionless यानी शक्तिहीन हो चुका था एंड पूरी तरह से उसमें कुछ जान नहीं थी। It was indeed a male baby और वो भी एक मेल बेबी लंगूर ही था। By this time my parents and sisters had come out on the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in the distance. उसी समय मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर उस वरांडा में आ गई और वही कि जिस तरह से मैंने उस बेबी लंगूर को बचाया था, रेस्क्यू किया था, उसका वो विटनेस थे और उसी के साथ मेरे नेबर्स आजू बाजू के रहने वाले लोग भी वहाँ आ गए। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. और मैंने उस बेबी लंगूर को हमारे घर के बैकयार्ड में यानी पीछे के आंगन में ले गया। वहाँ मुर्गियों को पालने के लिए कूप यानी केज था, उसके ऊपर उसे रखा। His body was full of deep bite marks and scratched. उस बेबी लंगूर की बॉडी पर बहुत काटने के व्रण दिखाई दे रहे थे, स्क्रैच हो चुका था। Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. उस लंगूर के बॉडी में से खून बह रहा था, जख्मों से खून बह रहा था और वो लंगूर पूरी तरह से मोशनलेस यानी कुछ हलचल नहीं थी। My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was breathing, even though his breath slow. उसी समय मेरे पिताजी ने
फर्स्ट एड किट यानी प्रथम उपचार करने की जो किट होती है वो लाई। उसने वो ब्लीडिंग को स्टॉप किया एंड मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि वो बेबी लंगूर में जान आ गई थी और वो थोड़ा सा ब्रीदिंग कर रहा था, सांस। Splash of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, फर्स्ट एड किट का यूज करने के बाद थोड़े समय बाद उसके ऊपर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दिया और वो थोड़ा सा स्टर यानी मूवमेंट करने लगा और वो बैठने की कोशिश कर रहा था। He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. और इस तरह से वो बेबी लंगूर पूरी तरह से शॉक हो गया था। हवा में जिस तरह से पत्तों की तरह वो कांप रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें भावनाओं की वश उसमें टीयर्स, पानी दिखाई दे रहा था। ही वॉज सॉबिंग, रो रहा था, यानी कि जिस तरह से छोटा बच्चा होता है, जैसे उसी को जैसे आगा शॉक होने के बाद जिस तरह से डर जाता है, उस तरह की हालत उस छोटी बेबी लंगूर की हो चुकी थी। I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. बाद में मैंने उसे बनाना खाने के लिए दिया और उसने वो अपने कांपते हाथों से उसे स्वीकार कर लिया और खाने की कोशिश कर रहा था। My attention was fixed on the revival of the baby langur. मेरा ध्यान वो जिंदा हुआ लंगूर की तरफ था। Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. अचानक मेरा ध्यान एक uncanny, अलौकिक जो फीलिंग कोई उसी और बेबी की ओर देख रहा था उस तरफ गया। I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move and I made. तब मेरा ध्यान मैंने ऊपर मेरे किचन के छत की तरफ देखा तो वहाँ उस बेबी लंगूर की माँ बैठी हुई थी और मेरे हर हलचल की तरफ वो देख रही थी। She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. वह आराम से वहाँ बैठी हुई देख रही थी और उसे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि उस बेबी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से कुछ भी धोखा नहीं है। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and crying a little louder. उसी समय उस बेबी लंगूर को महसूस हुआ कि उसकी माँ वहाँ बैठी और उसकी तरफ देख रही है और उसे देखते ही वो बेबी लंगूर फूट फूट कर रोने लगा। I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. और मैं उस मदर को देखते ही उस केज के डोर से पीछे हट गया जिससे वो मदर, बेबी की मदर नीचे आकर उस बेबी लंगूर को ले जा। Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arm. और तुरंत उस बेबी लंगूर की माँ नीचे वो पिंजरे कूप की फ्लोर जमीन पर आ गई और उसने बेबी लंगूर के अपने बाहों में उठाकर ले गई। She gave the baby thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. और उस माँ ने उस बेबी लंगूर को उठाकर उसके इंजुरीज को ध्यान से देखा और बाद में उसका धीरज देने के लिए अपने छाती से बोझम यानी दिल पकड़ ली। The baby found great solace in her caring arms. और उस बेबी लंगूर को बहुत शांति मिली उसके केयरिंग, उसके प्रोटेक्शन करने वाले बाहों में। The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. बेबी को उठाने के बाद वो मदर लंगूर कुछ समय वहाँ रुकी। It was almost as if she was pondering over her option and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. मानो कि वो मदर सोच रही थी कि कहीं उसे और
उस मेल लंगूर से धोखा तो नहीं है, उसका अटैक तो होने वाला नहीं है, और बेबी किस तरह से सेफ हो जाए, इसलिए वो ध्यान से देख। फॉर अ फ्यू सेकंड द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज। कुछ सेकंड उस मदर लंगूर ने मेरे आंखों में देखा। Even today I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. आज भी उस मदर लंगूर की नज़र को मेरी आंखों में देखना मैं भूल नहीं चुका हूँ। मानो कि मुझे उसके बच्चे को बचा, वो मुझे कृतज्ञता से देख रही थी, मुझ पर वो बहुत आभारी थी। I was overwhelmed by the emotion, the sentiment and the way she said thank to me. उसने जिस तरह से मेरी ओर देखकर आभार माना था, उससे मैं बहुत ओवरवेल्म हुआ था, इमोशनल हो गया था। There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. और वहाँ मदर लंगूर जो सब तरह की माँ उसी तरह से अपने बच्चों को, जो बच्चा स्ट्रिकन या सफ़र हुआ होता है, अपने लैप में, अपने बाहों में लेते उस तरह से उसने लिया होता। Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. और उसी समय उसने जंप मारकर बेबी लंगूर को अपने दिल से लगाकर अपने किचन के रूफ, छत के ऊपर चली गई। She surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. ऊपर जाने के बाद जो उसका दुश्मन मानो यानी विकेड, विशेष यानी इविल मेल लंगूर था, किस दिशा में वो होगा इसकी ओर उसने ध्यान से देखा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अपने बेबी को लेकर चली गई। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me interspecies communication and mutual trust is indeed reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into. उस घटना से, मदर लंगूर और बेबी लंगूर की मीटिंग से मुझे कन्विंस हुआ, मुझे महसूस हुआ कि इंटरस्पीसीज यानी जो प्राणियों में या जो भी सजीव में जो कम्युनिकेशन होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, वही रियलिटी है। और अगर ये सब में आता है, उसमें एक तार, कॉर्ड यानी तार छेड़ जाती है, तो कोई भी ह्यूमन्स एनिमल्स रिलेशन हो या एनिमल में रिलेशन हो, वो एक्टिव हो जाता है, कम्स इनटू एक्टिव, यानी वो रिलेशन वहाँ जागरूक हो जाता है। द मदर लंगूर शो मी दैट food was not the only means of communication between man and animal, but there were other means of establishing bond through trust, compassion and mutual understanding. The mother langur ने मुझे ये दिखा दिया कि सिर्फ एनिमल में और ह्यूमंस में यानी मैन में, मानव में फूड या खाना ये कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं हो सकता। तो मैन और एनिमल में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होने के लिए, स्थापित होने के लिए, एक बॉन्ड, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट, भरोसा होना चाहिए, कंपैशन यानी सिंपैथी, दया होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो मैन और एनिमल में एक रिलेशन निर्माण हो सकता है। 55 years have passed since that day. I am now 70 years old. और राइटर कहता है उस इंसिडेंट को, उस घटना को आज 55 years हो चुके हैं और आज मैं 75 years का हो गया हूँ, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड। और आज भी मुझे वो इंसिडेंट अच्छी तरह से याद है, किस तरह से एनकाउंटर ऑफ स्पेशल, वही इंसिडेंट एक मेल लंगूर ने किस तरह से बेबी पर एक एनकाउंटर किया था, अटैक किया था, और वो जो विशेष प्रकार की मुठभेड़ या घटना हो चुकी थी वो मुझे अच्छी तरह से आज भी याद है। इस तरह से तपन मुखर्जी अपना एक्सपीरियंस यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। Friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, please write in comment box. Wish you good day.
Thank you very much.